Focal length. The distance between pole and principal focus of a spherical mirror is called its focal length. It is represented by f if the aperture of the mirror is small, then f is equal to r upon 2. It means that the principal focus of a spherical mirror lies midway between the pole and the center of the curvature. ओके वेट करो, बस अभी अभी वेट करो, चिंता। ओके दोस्तों, Yes. दो बातें मैं बताना चाह रहा हूं तुम लोगों को बिफोर वी गो हेड। ये जो हम जो भी आपका जो सिलेबस में पढ़ाई होगी, इवन 11th 12th में जो आप पढ़ोगे, दैट स्टडी इज फॉर द स्मॉल फॉर द लेंसेज which have got smaller aperture. There are these rules, whatever you want to follow, they are for lenses and mirrors which are smaller in aperture. Large apertures के साथ कुछ aberrations आ जाते हैं, कुछ changes आते हैं. Just a off-hand point, कोई मतलब it's not a main point, it just came to my mind, तो I thought I'll tell you. Right. Now, अब हम सीखेंगे कि हमें इमेजेस बनानी है, और सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती हैं चीजें, स्टूडेंट को सबसे ज्यादा परेशानी होती है, सर इमेज में बनाऊं कैसे, बार बार कोशिश कर रहा हूँ, याद नहीं रहती किस तरह से करूंगा। तो इसके कुछ कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स समझ लो। द पॉइंट इज हाउ टू ड्रॉ रे डायग्राम्स। How to draw ray diagrams. Ray diagrams are the ones which show us the movement and converging and all those things of rays. Okay, so let's take concave first. Concave is known as converging. Number one, ray is from infinity and parallel to principal focus. What will happen? It will converge or diverge. डाइवर्ज किसमें होगी? कॉन्वेक्स में, टू फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट और फोकस, फोकस बोल देता हूं सीधा शॉर्ट में, दोनों वर्ड यूज होते हैं उस पॉइंट के लिए। ओके, दोनों को इधर एक साथ दिखाते चलते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। All right, see. F, C and P. इंफिनिटी से आएगी, it will converge to F. It will converge to F. इंफिनिटी से आएगी, it will converge to F. कॉन्वेक्स में क्या होगा? कॉन्वेक्स में प्रिंसिपल एक्सिस ये रही, C यहां पे है, F यहां पे है, P ये रहा। It came from infinity parallel to principal axis. It will appear to converge at F, but it will not. It will get diverged. Similarly here, to come from here, it will appear to go to F, but it will not. It will go out. This will happen when it is parallel to x-axis. All right. Next. हाँ जी, हाँ ऑपोजिट है दोनों, वो कन्वर्ज करता है, दूसरा वाला डाइवर्ज करता है। नंबर 2, passing through C. What will happen if a ray is passing through C? F, C, P. Ray passing through C will go back the same way and come back the same way,
will go same way and come back same way. Go, come back. This also, this one, line on passing through C and P, go this way and come back this way. What about this? Now this is slightly tricky, इस पे ध्यान देना. इस भाई का C पीछे है, F इसका यहां है, C इसका यहां पे, और P ये रहा. बड़े ध्यान वाली बात है ये रे डायग्राम, नहीं तो आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा, बाल खींच खींच के पागल हो जाओगे कि सर मुझे रे डायग्राम याद नहीं रहता, इमेज कैसे बनाऊं. ओके, इमेज इसका देखो अभी. देयर इज अ रे फॉलिंग इन अ वे दैट अगर यहां पे मिरर नहीं होता तो इट वुड हैव गॉन टू सी. So it will go this way and come back this way. The ray coming from here, if the mirror was not here, it would have gone this side, going and coming back. Guys, this is clear to you? So two conditions we have discussed: parallel to principal axis, converge at F, or diverge from F. Passing through C, same going, same coming. Viraj, so far clear? Antriksh, so far clear? हाँ भाई लोग, कार्तिक सिरोही, कार्तिकेन, राजवर्धन, सार्थक, भव्या, रवि, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, ठीक है. Yes, sir. Clear. ठीक है, ओके, राइट. नाउ लेट मी टेक यू द नेक्स्ट स्टेप. बिकॉज़ रीडिंग करने से पहले समझ लो, फिर रीडिंग आराम से समझ में आएगी. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट. नेक्स्ट है, थर्ड इज coming from focus. Coming from focus. Concave, convex. P, F, C. P, F, C. ओके, सी, अगर फोकस से निकल के गई इधर, इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. फोकस से गई इधर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ऐसा लगा कि फोकस पे आने वाली है. सॉरी, तो जब वो फोकस से जाएगी तो वो फोकस के पैरेलल हो जाएगी, रिफ्लेक्ट फिर इसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. जो भी रे फोकस से गुजर के मिरर को हिट करती है, इट बिकम्स पैरेलल टू पैरेलल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ सेकंड पॉइंट, कॉन्वेक्स में देखते क्या होता है. कॉन्वेक्स में जो भी ऐसा लगता है कि कोई रे फोकस की तरफ जा रही है, फोकस की तरफ जा रही है, ऐसा लग रहा है, जाएगी, पहुंचेगी तो नहीं, पैरेलल हो जाएगी. यहां से देखो, जाएगी, इधर पहुंचेगी, ऐसे जाएगी, पैरेलल टू वापस आ जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. सो अगर पैरेलल है तो फोकस पे कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी फोकस से, और अगर कर्वेचर से आ रही है, सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से आ रही है, तो कोई चेंज नहीं, वापस. सी और पी से भी जा रही है, कोई चेंज नहीं, वापस. और अगर एफ के थ्रू पास कर रही है या एफ पे फॉल कर रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अब इसका थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं, अब समझना. देन आई विल टीच यू हाउ टू ब्लिक डायग्राम. हाँ जी सर, जब मिरर में कोई इंसिडेंट रे करती है तो थोड़ी सी लाइट मिरर ऑब्जर्व कर लेता है, तो सर कन्वेक्स वाले केस में जो हमको दोनों में दिख रहा है लाइट जाती
हाँ सर मुझे हाँ उसमें दिख रहा है लाइट फोकस की तरफ जा रही है, तो सर वो हाँ। ऑब्जर्व लाइट है जो ऑब्जॉर्ब हो चुकी है, वो वाली लाइट है? नहीं नहीं, फोकस ना, वो दिस इज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रे डायग्राम्स। डज नॉट एक्चुअली, मतलब यू कांट सी दैट रे गोइंग, बिकॉज दैट रे इज नॉट गोइंग ओनली। अच्छा, वो चीज देखो, दूसरी चीज है। सपोज करो मेरे पास ये मिरर है, इसको मैं धूप में रख दूं, इस पर लाइट पड़ेगी ना, तो ये गर्म हो जाएगा भाई। तो वो रे से गर्म नहीं हुआ, वो जो हीट उसके अंदर फिर सर्कुलेट हो रही है। इट नाउ इट इज वर्किंग लाइक ए सॉलिड। के अंदर हीट कैसे स्प्रेड होती है एनीबॉडी? कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन कैसे होती है? कंडक्शन से होती है। मॉलिक्यूल अपनी जगह बैठे रहते हैं और जब एक्साइट होते हैं तो अपने पड़ोसी को पीटते हैं। वो पीटता हुआ पड़ोसी फिर एक्साइट हो जाता है, वो अगले पड़ोसी को पीटता है। दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। तो वो जो हीट इस पर पड़ी वो तो कंडक्शन से आ रही है, उसका रे से कोई लेना देना नहीं है। ओके, उसको कंफ्यूज मत करना बिल्कुल भी। ये दिस इज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस। दिस रे इज नॉट गोइंग इनसाइड, दिस रे हैज गॉन बैक, बट दिस इज अ वे साइंटिस्ट हैव अंडरस्टूड दिस कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इस तरह का प्रोसेस होता है। समझने के लिए ये होगा। राजवर्धन, यस सर। ओके, एक पॉइंट और है तुम्हें बताना कि इसको अलग से बताता हूं। फॉलिंग ऑन पी, falling on P. P is the center of the aperture. So I is equal to R. Let us say I have convex, concave and convex. ये मेरा P है। अगर कोई लाइन P, और नॉर्मल क्या होता है? 90 डिग्री का ये लाइन होती है। So C and P are lying on the normal. So अभी एक रे ऐसे आई, इसका इंसिडेंट एंगल 0 है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 है। कोई लाइन P पे पड़ी 30 डिग्री एंगल पे, तो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी 30 डिग्री एंगल पे। सेम इज द केस हियर, falls on 30 degree, goes on 30 degree. P पे पड़ने वाली लाइन का जो एंगल से आई है उसी एंगल से वापस लौट जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हमने चारों के चारों देख लिए। दोबारा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी या फोकस से डाइवर्ज हो जाएगी। अगर सी के थ्रू आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर के, तो जैसे आई है वैसी वापस चली जाएगी। अगर फोकल के थ्रू घुस रही है, फोकस के थ्रू आ रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। और अगर पी पे फॉल कर रही है तो जितने एंगल पे इंसिडेंस है उतना एंगल का रिफ्लेक्शन है। ओके, कार्तिकेय आप रीडिंग करें अभी? यस। चलो कार्तिकेय शुरू करें। या नाउ लेट अस सी रिप्रेजेंटेशन इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम्स। Yes. The reflection of light follows the same two laws everywhere. To construct a ray diagram in order to locate the image of an object, it is more convenient to consider only two rays. The intersection of at least two reflected rays gives the position of थोड़ा image. आवाज कम आ रही है, देखना आप थोड़ा माइक पास कर ले क्या। सर आज थोड़ा सा गला खराब है। तो तू रहने दे, फिर मत पढ़ना, गले पे स्ट्रेन पड़ेगा, छोड़ नहीं दे। नहीं, हाँ। वैसा वो नहीं है सर, वो ओके बात चल, करना फिर तो ठीक। reflected rays give the position of image of the point object. Yes sir. ओके, ऊपर भी पढ़ो अभी ये। द फॉलोइंग रेज कैन बी कंसिडर्ड फॉर लोकेटिंग द इमेजेस। Okay. The following rays can be considered for locating the image. The rays coming parallel to the principal axis pass through the focus after reflection in concave mirror or appear to come from the focus in convex mirrors. ओके, देख लो यार दोस्तों, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, वो जो मैंने समझाया वही है। पैरेलल आ रही है, फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी। कॉन्वेक्स में पैरेलल आ रही है तो ऐसा लगेगा फोकस पे जा रही है, लेकिन जाएगी नहीं, रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। ठीक, ओके। चलो राजवर्धन, यू टेक ऑन नाउ पॉइंट नंबर 2। Yes, sir. The rays coming through the focus of a concave mirror or coming towards focus of a convex mirror become parallel to principal axis after reflection from the mirror.
A ray coming to center of curvature of a concave mirror or towards the direction of center of curvature of a convex mirror reflects back along the same path on striking the mirror surface. Point number 4. And a एक ray incidence. एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई 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 एक मिनट, पहले मैं दोस्तों समझा दूं वही बात। एफ इससे गुजरी और प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल होगी। इधर ऐसा लगा कि एफ पे आ रही है, एफ की तरफ आ रही है, मिरर नहीं होता तो एफ पे पहुंच जाती, लेकिन यहाँ मिरर है तो मिरर ने इसको रिफ्लेक्ट कर लिया पैरेलल। अच्छा, रे कमिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइक आई सेड, कमिंग एंड गोइंग द सेम वे। आपने कहां तक पढ़ लिया? या ओके, पढ़ लिया ना, ठीक है। A ray incidence obliquely to principal axis towards the pole P of a concave or convex mirror is reflected obliquely following the laws of reflection. Example, angle of incidence equals to एंगल ऑफ angle of इंसिडेंस एंगल। ठीक है दोस्तों, ये तो बहुत इजी है, मैंने समझा दिया। अच्छा, अब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि मैं समझाने जा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। ये तुम्हारी पकड़ में आ गया तो तुम्हें डर लगना बंद हो जाए। बहुत लोगों को लाइट चैप्टर बहुत खराब लगता है। किस किस के स्कूल में हो गया यार ये लाइट चैप्टर? सर अभी चल रहा है सर हमारी मेरे में क्लास तो भी सर हमारे स्कूल में ऑलमोस्ट हो गया है, कल मतलब अगली 1-2 क्लास में हो जाएगा। अच्छा राजवर्धन, ओके। और बाकी सात्विक तुम्हारा हुआ? विराज तुम्हारा हो गया? सर अभी अभी स्टार्ट किया है स्कूल। सर हमारे यहाँ 2 दिन में खत्म हो जाएगा शायद, या 3 दिन। तो ये तुम लोगों को कुछ आया दिमाग में कि कॉनकेव में अगर यहाँ इमेज होगी तो वहां मिरर ऑब्जेक्ट होगा, वहां ऑब्जेक्ट होगी तो वहां मिरर इमेज बनेगी? ऐसा आया कुछ? समझ आया कि नहीं? मैं उसी हिसाब से फिर क्लास बताऊंगा। में मुझे रिफ्रैक्शन समझ आ गया था पर रिफ्लेक्शन नहीं समझ आया था। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। चलो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे डिटेल में जो दिया हुआ है वो है, जहां तक मिरर का सवाल है, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर की 5 पोजीशन अलग अलग होती है, उनका कैसे कैसे डायग्राम बनाना ये आप लोग सीख लोगे। Okay, two, three, what do you call terminologies. Firstly, there are 2-3 things. First is object. ऑब्जेक्ट है जिसकी की इमेज हमें बननी है, मतलब ऑब्जेक्ट का कोई अंडरस्टूड है, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है, एवरीबॉडी नोज इट। इमेज, दिस ऑल्सो यू नो, जो मिरर ने उसको बनाया वो इमेज है। यू इज डिस्टेंस of object from P, and V is distance of object, distance of image from P. H is equal to height of object. H dash is height of image. ठीक है दोस्तों, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, तो क्लियर है अभी, कोई मामला इसमें गड़बड़ नहीं? यस सर, क्लियर? यस। अगर U P के लेफ्ट साइड में होगा तो प्लस का होगा, बट U तो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में ही होगा। U तो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में ही होता है, अनलेस कि अगर आपको मिरर उल्टा कर दिया उन्होंने, उधर करके रख दिया उधर रख दिया, और देख लेंगे डायग्राम के हिसाब से। पर ध्यान रखना, अगर ये P के लेफ्ट में है, P की तरफ है जहां से लाइट आ रही है, तो U पॉजिटिव, U नेगेटिव होगा। और V डिपेंड करेगा, मिरर के सामने है जहां से लाइट आ रही है, शाइनी साइड की तरफ है, शाइनी साइड की तरफ है पॉजिटिव, डार्क साइड की तरफ है नेगेटिव। यहां लिख देता हूं, ये छोटा सा गुरु मंत्र है, इसको पकड़ लो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। पॉजिटिव इफ अपोजिट शाइनी साइड। तो कल मैं से पूछा था कार्तिकेय ने कि सर वाइस वर्सा क्या होता है, आज मैं वर्ड को यूज कर रहा हूं, पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा। पॉजिटिव इफ अपोजिट शाइनी साइड एंड वाइस वर्सा, अगर नहीं है तो नेगेटिव। Okay, let us first understand concave mirror. Concave mirror of images, object
versus images. Okay. So guys, see, this is your concave mirror. Let's take this as principal axis. On the principal axis is C, F and P. ये पूरा यहां से यहां तक रेडियस है, यहां से यहां तक रेडियस है। सबको क्लियर है रवि? ये तो बात अब समझ में आ गई, बार बार बताने की जरूरत तो नहीं। सी Yes, sir, ये रेडियस है और Yes, sir. ये जो डिस्टेंस है एफ फोकल लेंथ है, एफ, दिस इज फोकस। ओके, नाउ जस्ट इमेजिन वन थिंग, ये सी के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज भी सी पे बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज बनेगा। ये बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल मैं तुम्हें बता रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज। नाउ ये इसको समझ लो, ये साइकिल की चेन है, ये पीछे पहिया है साइकिल का, ये चेन है। ये चेन कैसे चलेगी देखना अभी। अगर मैं ऑब्जेक्ट को दोस्तों ले जाऊं पीछे, ये वाले ऑब्जेक्ट को मैं इधर ले आया इन्फिनिटी पे, तो चेन खींच जाएगी इधर। जब ये वाली चेन खींचेगी तो ये वाली चेन आगे जाएगी और ऑब्जेक्ट कहां आएगा। सो इफ दिस इज ऑन इन्फिनिटी, अब मैं टेबल भी एक बना देता हूं छोटी सी। ऑब्जेक्ट, इमेज, इमेज की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज। नंबर 1, ऑब्जेक्ट एज इन्फिनिटी, ये रहा। इमेज एट एफ, इमेज एट एफ, क्यों? देखो यहां बन गई, यहां मिल गई दोनों की दोनों एफ। इमेज इज एट एफ। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस इमेज? दिस इमेज इज फर्स्टली रियल, इन्वर्टेड, एंड इट इज पिन पॉइंट साइज है, इतनी छोटी है कि देख नहीं सकते आप इसको। हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं इसको, हाईली डिमिनिश्ड। अच्छा जी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपने क्या किया, आप अपने ऑब्जेक्ट को लेके आ गए बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। तो लेट्स से योर ऑब्जेक्ट इज, अब इसको ध्यान रखना साइकिल की चेन को, इसका आपने ऑब्जेक्ट इधर लेके गए तो साइकिल की चेन थोड़ा सा इधर चली जाएगी। इसको इधर खींचा साइकिल की चेन को आपने, इसको यहां लेके आए आप, इमेज यहां बनेगी। लेट अस सी। मैं बना के भी दिखा रहा हूं, वैसे तो तुम्हें सिर्फ अभी याद करना सिर्फ ये कौन सी चीज की इमेज कहां बनेगी, ज्यादा उसमें नहीं घुसना, अभी नॉर्मल उसको देखो। ओके, और एक इसकी रे यहां से गई और यहां आके इसने इसको काट दिया, इमेज बन गई यहां दोस्तों। सो नंबर 2 पॉइंट, जिस कलर का मैंने इमेज बनाया है, पेन यूज किया है, उसी कलर का वहां पॉइंट लिख रहा हूं। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। तो क्योंकि ये साइकिल की चेन ऐसे बंधी हुई थी, इस चेन को इधर खींचा तो ऑब्जेक्ट इधर चला गया, फिर साइकिल की चेन की लेंथ उतनी है, जितना इसको खींचोगे उधर चला जाएगा वो। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कार्तिक, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। साइकिल चेन होती कैसे? ऐसे होती है, यहाँ पे अगर तुम चलाओगे साइकिल, चेन ऐसे घूम जाती है वापस, इसको आगे चलाओगे तो पीछे की तरह ऐसे चलती है चेन, इसको ऐसे करोगे तो ऐसे जाएगी। सो नाउ इजी टू रिमेंबर, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को इधर खींचा तो मेरा ऑब्जेक्ट, इमेज को, ऑब्जेक्ट को इधर खींचा तो इमेज थोड़ी सी इधर आ गई। सो बिटवीन C एंड F, इमेज कैसी है? रियल है, इन्वर्टेड है एंड डिमिनिश्ड है, छोटी है, डिमिनिश्ड है। ओके, C का तो बता ही दिया, इफ द ऑब्जेक्ट इज C, इमेज इज एट
बहुत फ्रूटफुल क्लास है आज की, बहुत फ्रूटफुल क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं. ऑब्जेक्ट इज एट सी, इमेज इज एट सी, रियल इन्वर्टेड सेम साइज, रियल इन्वर्टेड सेम साइज. अब बड़ी होनी शुरू होगी, देखना अब इमेज आपकी बड़ी होनी शुरू होगी. अगर इसका डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बना के दिखाता हूं. देखो यहां से गई ये ब्लैक वाली रे, एफ से निकली, एफ से निकली, और फिर यहाँ पी से, पी पे गई एक रे, और यहां से निकली. मतलब ऑलमोस्ट तुम्हारी ये ड्राइंग थोड़ा सा टेढ़ी-मेढ़ी हो रही है मेरी. अगर तुम उससे करोगे ना, मेरे पास इसका पिक्चर है, मैंने स्केल से बना रखा है, वो मैं तुम्हें भेज दूंगा स्केल से एग्जैक्टली नाप के कि कैसे कैसे होगा. तो दिस इज इमेजेस हियर. ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ. व्हाट हैपेंस इफ आई टेक इट बिटवीन सी एंड एफ. अब ऑब्जेक्ट को आगे ले गया मैं इधर, यहां नहीं, थोड़ा सा इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. यहां ले लिया. So where is my object now? Between C and F. ये रहा इमेज. यहां साइकिल की चेन उधर गई तो ये वाली खींच के इधर आ गई, उसको उधर प्रेस किया तो ये इधर आ गया. Where is the image? Between C and infinity. Between C and infinity. And image है कैसी? रियल है भाई, इन्वर्टेड है भाई, और एनलार्ज्ड है. अभी अभी बड़ी होगी, मैग्नीफाइड बोलते हैं इसको, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड. राइट. व्हाट अबाउट एफ? अब आगे एफ पे हम, एफ पे जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट आपका एफ पे आ जाएगा, तो इसकी कोई इमेज नहीं बननी, बनेगी, माना जाता है कि इन्फिनिटिव बनेगी, क्योंकि ये लाइन जो आएंगी ये पैरेलल चली जाएंगी. यहां से निकलेगा ये से, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल चलती रहेंगी ऐसे. इमेज एट इंफिनिटी. हाउ इज द इमेज? Image is real, image is inverted and highly magnified. ये 5 इमेजेस तो दोस्तों रियल बनी हैं. अब हम उस इमेज को देखेंगे जो डेंटिस्ट जो यूज करते हैं मिरर आपका दांत देखने के लिए, जिसमें कि आपका दांत बड़ा दिखाई पड़ता है. मेरे पास वो मिरर आने वाला है आज या कल में, मैं लगवा रहा हूँ बाथरूम में अपने, तो वो दिखाऊंगा तुम्हें. उसमें फेस जो बड़ा लगता है, जो आप ब्यूटी पार्लर लेडीज वगैरह यूज करती है, तो वो वाला इमेज अभी हम देखेंगे. विच इज दैट इमेज? दैट इमेज इज बिटवीन 6, between F and P, between F and P. यहां है आपका वो, यहां है आपका ऑब्जेक्ट. Let us see what will happen. This will go from here and will come through F. This will go from here and come from here. अभी क्या होता, पहले तो पैरेलल थी, अब इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है. जैसे जैसे आगे जा रही हैं ये डिस्टेंस इनका बढ़ता जा रहा है, ये कभी नहीं मिलेंगी, तो रियल इमेज तो कभी बन नहीं सकती. अब कोशिश करते हैं हम वर्चुअल इमेज बनाने की, तो ऐसा लगेगा कि ये रे ऐसे जा रही है पीछे और ये वाली रे ऐसे जा रही है पीछे, and they will meet here and they'll form an image which is, acha, so where is what is the location of the image? Behind the mirror. How is the image? Image is virtual. First time image is not inverted, image is erect and magnified.
So location number 1, location number 2, location number 3, location number 4, location number 5 and location number 6. इसका मैं फोटो भी खींच के भेजूंगा, वीडियो भी बन गया। 5 बार देखो, 10 बार देखो, तुम्हें जितना देखना देखो, इससे ज्यादा तुम्हें अच्छे से कोई नहीं समझा सकता, गारंटी दे रहा हूँ। ये साइकिल की चेन वाला कॉन्सेप्ट बस याद रखना कि जब शुरू में चेन अपनी इधर है, इधर लेके जाऊंगा ऑब्जेक्ट को तो इमेज इधर भागेगी, और अगर ऑब्जेक्ट को इधर भगाऊंगा इमेज इधर भागेगी। राइट गाइस, टेल मी एनी डाउट्स? नो डाउट सर। रवि, कार्तिकेय, राजवर्धन, सात्विक, अंतरिक्ष, भव्या, कार्तिक सुरोही, अचिंत्य, यस सर, क्लियर। राजवर्धन, भैया बताओ क्लियर है? यस Yes सर। sir, clear. कल आगे लेके चलूंगा इससे। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि यार अब तो समझ में आ रहा है, हाला अब तो मेरा राजवर्धन अब आया रिफ्लेक्शन समझ में? Yes sir, आ गया। ठीक है, अब इसको एक बार रिवाइज कर लेना, हो जाए। कल का क्लास का अटेंड करने से पहले एक बार इसको देख लेना फास्ट स्पीड करके, जैसे भी कोशिश करना अपने से बनाने की, जो मैंने किया अपने से बनाने की कोशिश करना, तभी होगा। चलो गाइस, सी यू टुमारो एंड अंटिल देन बाय। Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय गाइस, थैंक यू। Bye. बाय बाय कार्तिकेय, बाय चिंते, बाय। Can you please share this PDF in the group? अभी कर रहा हूँ। Okay.